visited me and he came and when he prescribed the diet, I started taking the diet. Believe me, my sugar levels are totally normal. Absolutely. He took so much care of me and I don't have words for it. When I got myself tested, in adults it's more of a late age onset, a natural form of treatment. So I thought, fine, if medicines won't help. The energy level now is something that it keeps me sustained until late in the evening. Otherwise, it's a full day of full of energy. Hi, my name and I have damaged a lot of my body parts. So one of my billing friend who came across Harish Bhai Shetty, who has been doing naturopathy, and she introduced me to Fresh, and the pain is also reduced a bit. So I'm really thankful to Harish Bhai Shetty as well as Amba Gopal Foundation. In the year of 2012, I consulted my family doctor. He told me to take X-ray. I went and saw doctors there. Then they told me to go for started fourth stage. I met Harish Shetty. Then he told me he will give me some special vegetable and fruits treatment. For 9 months I should take, then I will be okay. After taking this therapy, the body plague is completely gone also. I am perfectly well now. One fine morning I had severe problems in my stomach. I came home and he looked at me and said that I think Bhushan, you should get all these tests done. We got somebody from SRL to come home and they took all the tests. And when he saw the reports, he said that you seem to be able reports. And then said, look, I'm recommending a diet for you. A diet made out of food, you have to trust it and taste it and see how it works out. And I don't promise you anything, but my doctor looked at me, was quite surprised. He said, Bhushan, what is happening with you? So all your parameters are back to normal. The so-called kidney which is non-treatable, the so-called liver which is having a problem, all of them came back, the reports said that they all... There's muscle tone getting a little low because his muscle tone is quite high, and that is the main hindrance that we face while giving him, trying to get him mobility. And then I went to physiotherapist. Physiotherapist advised me to go to a neurologist who did some tests by admitting myself in the hospital. In the end of May, I was feeling better about 50%. Started 1.5 months. I am almost 75% better. I am able to drive car. I am able to walk properly. Initially I was and holding pen, so it was affecting my profession also and my physique also. So now after this naturopath diet, I am feeling 75%. तो आप क्यों बोलते हैं हम बीमार हैं? हाँ? हम में से कोई बीमार नहीं होता है. अगर बीमार होता है तो ये शरीर. तो जैसे ही हम अपने आप को कहते हैं कि हम बीमार हैं, तो हमारा पूरा पावर चला जाता है ठीक करने में. अगर ड्राइवर बीमार होगा तो गाड़ी कौन ठीक करेगा? तो हम शरीर नहीं है, हम शरीर का मास्टर है. जैसे ही हम ये सोच लेके आएंगे तो हमारे अंदर वो पावर आएगा, वो उस जो पुर्जा या जो हिस्सा बीमार है उसको ठीक करने का. नहीं तो हमारे अंदर वो पावर ही नहीं रहेगा ठीक करने का. अगर ड्राइवर बीमार है तो गाड़ी ठीक कर सकता है क्या? हाँ, गाड़ी बीमार है तो ड्राइवर बीमार हो सकता है क्या? नहीं. तो इसके लिए 50% वही हम जीत जाते हैं जब हम कहते हैं कि शरीर बीमार है. ये बहुत ज़रूरी है, हमारा सारा डर निकल जाता है. दूसरा 50% ये है कि शरीर में से कुछ हिस्सा बीमार है. हम देख सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, सांसें चल रही है. कुछ हिस्सा हमारा 5 या 10% हिस्सा हमारा बीमार होता है. तो उस बीमारी को क्या हम ठीक नहीं कर सकते? शरीर में पावर नहीं है. हाँ, तो हमको ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि हम बीमार नहीं हैं, हमारा शरीर का कुछ हिस्सा बीमार है. ये सोचना बहुत ज़रूरी है हर पल, क्योंकि तब जाके हम कंट्रोल कर पाएंगे हमारे उस पुर्जे को,
जो बीमार है। अब हम देखेंगे कि वो पुर्जा क्यों बीमार होता है। ठीक है, तो आज से कितने जन बोलेंगे कि हम बीमार हैं? हाथ ऊंचा करेंगे। हाँ, कोई बीमार नहीं। देखो अभी बस बात खत्म हो गई फिर तो हाँ, बात वहीं खत्म हो जाती है फिर। ठीक है, तो अभी हम उस पुर्जों को जो बीमार है, जो तकलीफ दे रही है, वो क्यों हो रहा है वो हम देखेंगे, वो हम देख के समझेंगे। हम बीमार क्यों गिरते हैं, कोई बता सकता है? सर आप बताएंगे हम बीमार क्यों गिरते हैं? हाँ, लॉन्ग लाइफस्टाइल। अब रॉन्ग लाइफस्टाइल किसका है? तो अगर हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? जब हमको पता है कि हमारा लाइफस्टाइल रॉन्ग है तो आपको पता भी होगा कि राइट लाइफस्टाइल क्या है, राइट? तो वो हम नहीं करते हैं। तो या यू कैन पुट अ चेयर हियर सो दैट दे कैन सिट। तो हम वो कर नहीं पाते हैं। तो अब क्योंकि हम नेचर के खिलाफ हो गए हैं, नेचर से दूर हो गए, इसके लिए सारी बीमारी है। तो आज हम बस नेचर की तरफ घूम के वो कैसा है वो समझकर हम फिर से हमारी ज़िंदगी शुरू करेंगे और देखेंगे कि सारी बीमारी ख़त्म हो गई है। हाँ, ओके। सो हीलिंग जो है वो ऑटोमेटिक है। जब क्यों हीलिंग ऑटोमेटिक है? हीलिंग ऑटोमेटिक इसके लिए है क्योंकि शरीर बनाया किसने है? उस परमात्मा ने ये शरीर बनाया है। तो उसका इंजीनियरिंग गलत हो सकता है क्या? हाँ, हर हिस्सा, हर पुर्जा सोच समझकर 150 साल के लिए बनाया है। अगर आप स्क्रिप्चर्स खोलेंगे, गीता या कोई भी स्क्रिप्चर्स आप खोल के देख लीजिए, उसमें लिखा है कि शरीर का उम्र है 150 साल। तो आज हम 50 साल में ही 150 साल जी लेते हैं हाँ, 50 साल में ही लोगों का शरीर 150 साल जैसा हो जाता है। दे एज फास्ट। वाई डू दे एज फास्ट? वो एज इसके लिए क्योंकि हमको पता नहीं कि हमारा शरीर चलता कैसा है। यहाँ पर कोई बताएगा कि शरीर का, हम खाना खाने के टाइम पे हम कभी सोचते हैं कि ये हमारा शरीर का फ्यूल है कि फूड है? हम खाना खाते हैं कि गाड़ी में फ्यूल डालते हैं? कोई सोचता है यहाँ पर खाने खाने के टाइम पे? हाँ, कोई भी नहीं ऐसा, एक जन भी ऐसा जो सोचता है कि मैं ये शरीर में ऊर्जा डाल रहा हूँ, ऊर्जा भर रहा हूँ मेरे शरीर में। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन ये है कि हम शरीर में खाना भर रहे हैं। वो खाना है 2 जबान के लिए। हर प्रॉब्लम 2 इंच जबान का है। तो 2 इंच जबान के लिए खाना खाओगे तो ऊर्जा कैसे भरेंगे? सारा शरीर के लिए खाना होना चाहिए। तो सबसे पहला है फ्यूल। फ्यूल जब हमको पता ही नहीं है, हमको सब पता है ये लाइट कैसा चलेगा, ये कैसा चलेगा, या ये जो मैंने लगाया ये कैसा चलेगा, हर चीज का इंसान को पता है, लेकिन ये पता नहीं है कि किस तरह हमारा शरीर चलेगा, इंसान का शरीर किस तरह, ये हमको पता नहीं है। जो 2 इंच जबान को पसंद आता है वो पेट पे पहुंच जाता है। सो पेट कचरा डब्बा बन के रह गया है। तो कचरे डब्बे से ऊर्जा मिलेगी? हाँ, तो यही एक कारण है। तो हमको आज समझना है कि हमारा शरीर का फ्यूल क्या है, शरीर में क्या डालना चाहिए, क्या इस शरीर का पेट्रोल है। कभी जाना है हमारा पेट्रोल क्या है, क्या खाना चाहिए? नहीं। तो हम पेट्रोल जानेंगे इस शरीर का। आज तक घासलेट डालते रहे, पेट्रोल की जगह पे घासलेट भरते रहे। हाँ, पेट्रोल की गाड़ी में अगर घासलेट डालोगे गाड़ी चलेगा? पेट्रोल की गाड़ी में पेट्रोल डालकर 1 चम्मच शक्कर डालो, गाड़ी चलेगा? नहीं। लेकिन हमारा शरीर चलता है, उसको अब्यूज करते जाते हैं, फिर भी वो साथ देता है। फिर भी हमको बोलता है ठीक है आज तुम खाओ लेकिन कल से दोबारा सही रहो। इतना मजबूत है हमारा शरीर।
राइट। तो 3 चीज है, फ्यूल, रेस्ट और क्लीनिंग। फ्यूल हमारा क्या है ये हम समझेंगे, उसके बाद हमको रेस्ट कैसे करना है ये हम समझेंगे, और उसके बाद शरीर क्लीन कैसे करेगा ये हम 3 बात समझेंगे। ये 3 में सारा मूल है, सारी बातें ये 3 चीज में है। ये 3 चीज सही नहीं है, इसके लिए बीमारी। अब हम देखेंगे कि सही फ्यूल क्या है। सही फ्यूल है लिविंग फूड, जिंदा खाना, और हम जी रहे हैं मुर्दा खाना में। जिंदा खाना है फ्रूट्स, नट्स, स्प्राउट्स, वेजिटेबल्स एंड सीड्स, तरकारी और सीड्स। तो ये 4-5 चीज जिंदा खाना है, और हम जी रहे हैं मुर्दा खाना में। मिल्क, शुगर, ऑयल, नॉनवेज, ग्रेन्स। 90% लोग इसमें जीते हैं। 90% खाना यही है हमारा, जो होना नहीं चाहिए। और हमारा खाना होना चाहिए फ्रूट्स, नट्स, वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स एंड सीड्स, जो जिंदा है, जो बो उपजा आ जाएगा उसके अंदर। एडिंग लाइफ टू लाइफ। जिंदा खाना हमारे शरीर में ऊर्जा पैदा करेगा। सो ये जिंदा खाना क्यों खाना चाहिए? एक तो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। आप नॉनवेज खाते हो, वो ऑलमोस्ट 2 दिन लगता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। 1 गिलास दूध 12 से 14 घंटा लगता है। फिर अनाज जो है ये भी डेड होता है। जब हम अनाज खाते हैं तो वो जिंदा नहीं होता है, और जब वो जिंदा नहीं है तो एसिडिक। आप कुछ टाइम उसको पानी में रखो तब जाके वो जिंदा होता है, लेकिन जब हम खाते हैं तो वो जिंदा नहीं होता है, वो एसिडिक होता है। और तीसरा बात है कि हम सोने से पहले ये सारा खाना हजम हो जाता है। सो हम जी रहे हैं मुर्दा खाना में। बताएंगे कौन सा मुर्दा खाना है एक कोई भी? यस सर, विच इज वन ऑफ द डेड फूड? व्हीट, ग्रेन्स, ओके। नेक्स्ट, या नॉन-वेज, ओके। वन मोर, मिल्क, शुगर एंड ऑयल, ओके। सो हमारा खाना होना चाहिए फ्रूट्स, नट्स, वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स, सीड्स। जैसे ही हम ये खाना शुरू करेंगे, शरीर अच्छी तरह से हजम कर पाएगा और हमारा खाना हमको ऊर्जा देगा, ओके। अभी आप लोग बोलेंगे कि दूध नहीं है तो कैल्शियम कहाँ से आएगा, राइट? कैल्शियम को कितने जने यहाँ पर कैल्शियम टैबलेट लेते हैं? वेरी गुड। कितने साल से ले रहे हैं आप? बहुत साल से। तो कैल्शियम तो बढ़ जाना चाहिए आपके अंदर। हाँ, कैल्शियम तो बढ़ जाना चाहिए। शरीर बढ़ रहा है, कैल्शियम नहीं बढ़ रहा है। हाँ, तो कैल्शियम और विटामिन टैबलेट्स हमारा शरीर को एब्जॉर्ब नहीं करता है जब तक वो फाइबर के नाम पे नहीं आता है। जब तक उसके अंदर फाइबर नहीं होता है तब तक कैल्शियम विटामिन एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो कैल्शियम विटामिन टैबलेट्स मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए, वो सारा खाने में आना चाहिए। आज हॉर्स जो है, जो सबसे हम बोलते हैं हॉर्स पावर हम काउंट करते हैं, जो सबसे मजबूत एनिमल है, वो कौन सा कैल्शियम खाता है? कौन सा विटामिन गोली खाता है? चना तो पालतू खाता है। यहाँ पर जब वो उसको रखते हैं अस्तबल में तब जाके चना मिलता है। जंगल में कौन सा चना मिलता है? हाँ, बराबर। तो अगर उसको उन सब जानवरों को चलता है तो हमको क्यों नहीं? हाँ, हमको क्यों कैल्शियम टैबलेट्स लगता है? क्योंकि हम नेचर से दूर हो जाते हैं। जब नेचर के पास आ जाते हैं तो हमको सब कुछ मिल जाता है। तो जैसे ही आप ये बात समझेंगे तो आप लोग कैल्शियम टैबलेट बंद कर देंगे। अभी हम बोलेंगे, आप लोग बोलेंगे कि हमारी इच्छाएं बहुत है, ओके। शाम को 4 बजते ही भेलपुरी, चाट, वड़ा पाव ये खाने की इच्छा होती है। सुबह उठते ही हमको चाय की तलब लगती है।
तो ये इच्छाएं, ये आपकी इच्छाएं नहीं है, ये इच्छाएं शरीर की है। जब एनर्जी लो रहता है तब शरीर दिमाग को बोलेगा मीठा 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 खाओ। जब शरीर में मिनरल्स कम हो जाएंगे तब शरीर बोलेगा चटपटा, बड़ा पाव, भेलपुरी, पानी पूरी। एक्चुअली शरीर मांग रहा है मिनरल्स। तो जैसे ही आप लोग ये खाना रिप्लेस करेंगे, आपका क्रेविंग, जो आपकी इच्छा है, वो अपने आप बंद हो जाएगी। एक जमाने में मैं भी इतना मोतीचूर का लड्डू लेके बैठता था, झूठ नहीं, ये सच बात है। और जैसे ही मैंने ये खाना शुरू कर दिया है, आज सामने पड़ा है तो इतना सा शक्कर मुंह में डालता हूं तो उल्टी हो जाती है, मतलब पसंद नहीं आता है। तो जैसे ही आप लोग इससे रिप्लेस करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी सारी इच्छाएं कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। तो इच्छाएं आपकी नहीं है, इच्छाएं हैं शरीर की। दिमाग को खुरेदते रहता है, ये लाओ वो लाओ, ये लाओ वो लाओ। तो जैसे ही आप लोग ये खाएंगे, पूरी इच्छाएं खत्म। शरीर को चाहिए 90% अल्कलाइन फूड, 10% एसिडिक फूड। आप लोग जीते हैं 100% एसिडिक फूड में। तो क्या होगा? शरीर एसिडिक हो जाता है और उसी वजह से बीमारी शुरू होती है। जब शरीर एसिडिक हो जाता है तो शरीर आपको बताएगा कैसे कि आपने शरीर को कंप्लीटली एसिडिक कर दिया है। ये सब पैरामीटर्स बढ़ा के, डायबिटीज थोड़ा शुगर लेवल बढ़ा देंगे, या ब्लड प्रेशर बढ़ा देंगे, या अर्थराइटिस होगा, या कैंसर होगा। जो भी बीमारी है, जो जिसे बीमारी मैं नहीं कहता हूँ, मैं बोलता हूँ वो इंडिकेटर्स है। इंडिकेटर्स नहीं तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा। आप जब डायबिटीज होता है या पैर में कभी दर्द होता है, तब जाके आप चेकअप करते हैं कि ये हो क्यों रहा है बोल के। उस दिन तक अगर वो तकलीफ नहीं देगा तो आप लोग में से कोई भी जाके चेक नहीं करेगा कि मेरा शरीर कैसा चल रहा है। तो जब आप चेक करते हैं तो आप सोचने लगते हैं अरे डायबिटीज है, तो ये पढ़ने लगते हैं या समझने लगते हैं कि क्या खाना चाहिए, कैसा सोना चाहिए, योगा करना चाहिए, वॉकिंग करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, जिम जाना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। ये तब होता है जब आपको पता चलता है कि शरीर ठीक तरह से चलता नहीं है। लेकिन शरीर ठीक तरह से चलता नहीं है, वो बताता कौन है? वो शरीर ही बताता है। तो जब शरीर बताता है तब जाके आप क्या करते हो? ब्लड प्रेशर बढ़ गया, पप एक गोली खा लेते हो और ब्लड प्रेशर नॉर्मल। लेकिन कितने घंटे के लिए? 8 या 10 घंटा। उसके बाद वापस वही लेवल पे आ जाता है। डायबिटीज, अर्थराइटिस इसी तरह चलता है। तो जैसे ही आप लोग ये समझेंगे कि ये बीमारी नहीं है, ये शरीर आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा है, तो आपका पूरा डर निकल जाएगा। तो डायबिटीज, बीपी, अर्थराइटिस, कैंसर या कोई भी बीमारी, ये बीमारी नहीं है। ये समझिए आपके पास एक घर है, जिस घर में आपने एक फायर अलार्म लगाया और फायर अलार्म लगाने के बाद किसी दिन वो फायर अलार्म बजने लगता है, तो फायर अलार्म बंद करके सो जाएंगे कि ढूंढेंगे आग किधर है? क्या करोगे? आग किधर है ढूंढोगे। अब यहां पर रोज ये फायर अलार्म रोज चिल्लाता है फायर फायर फायर। आप बोलते हो चुप, मैं जानता हूं, सो जाओ बोल के उसको एक गोली खिला देते हो और सो जाते हो। हाँ, जिंदगी उसी तरह बसर करते हो, खाली एक गोली के बलबूते पर। तो आज ब्लड प्रेशर हुआ तो ब्लड प्रेशर के लिए एक गोली, 2 साल ब्लड प्रेशर लेने के बाद तीसरा साल डायबिटीज शुरू हो गया तो डायबिटीज के लिए एक गोली, और इसी तरह उसको दबाया जाता है। और जैसे ही हर साल वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, तो ये साल 10 mg, अगले साल 30 mg, फिर 50 mg, फिर इंसुलिन। तो इसी तरह उसको आप दबाते हो, ढूंढते नहीं हो कि आग किधर लगी है, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। बस एक दफे ये बात समझ गए तो आगे की सारी बातें बहुत आसान है। तो आज से कितने जन है जो आग ढूंढेगा? अरे वाह, देखो, वेरी गुड।
हाँ, तो आग ढूंढेंगे हम लोग और आग बुझाएंगे। ओके, उसको दबाएंगे नहीं आज से। अब सारा प्रॉब्लम है, जब आप खाना खाते हो तो आपका खाना हजम नहीं होता है, और जब हजम नहीं होता है तो शरीर साफ नहीं कर पाता है। समझिए, घर में अगर कचरा भरा हुआ है तो वहां पर गेस्ट आएगा कि पेस्ट आएगा? पेस्ट आएगा। तो वो पेस्ट हमारा सारा बीमारी का कारण है। सो जैसे ही आप लोग कचरा सफाई करने के लायक बन जाओगे, आपका शरीर मतलब, तब आपका सारा जो पेस्ट आता है वो आना खत्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर कचरा पड़ा है तो एक 8 दिन के बाद कॉकरोच आएगा, मैंने कॉकरोच की दवाई मारी। कुछ दिन के बाद यहाँ पर मक्खी आएगा, मैंने मक्खी की दवाई मारी। कुछ दिन के बाद कुछ और आ गया, उसकी दवाई मारी। अरे कचरे को निकाल के बाहर फेंक दो, ना कॉकरोच आएगा, ना मक्खी आएगा, ना दूसरा कुछ आएगा। तो इसी तरह बुखार जब आता है, बुखार होता क्या है? बुखार होता है यही, बुखार हमारा शरीर का सबसे बेस्ट चीज है। तो बहुत जरूरी है, क्योंकि बुखार जो है वो सारा पेस्ट को मार देता है। हम पानी गर्म करते हैं, क्यों करते हैं? पानी गर्म इसलिए करते हैं क्योंकि उसके अंदर जो कीटाणु होता है वो मारने के लिए। तो शरीर में जब टेम्परेचर बढ़ता है, क्यों बढ़ता है? कभी सोचा है? आप कश्मीर में जाओ जहां 0 डिग्री है, वहां पर भी आपका शरीर का टेम्परेचर 97.5 ही रहेगा। आप रेगिस्तान में जाओ जहां 50 डिग्री होगा, वहां पर भी आपका टेम्परेचर 97.5 होगा। तो आपका शरीर का टेम्परेचर बढ़ता क्यों है? शरीर का टेम्परेचर इसलिए बढ़ता है क्योंकि शरीर, नेचर ने एक टेक्निक रखा है कि जब भी कीटाणु आपका शरीर में अटैक करेगा, टेम्परेचर अपने आप बढ़ेगा। टेम्परेचर अपने आप बढ़ के वो उसको खत्म कर देगा कीटाणु को, और वापस सेटल हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे ही बुखार आया, एक गोली अंदर, कीटाणु एज इट इज, और बुखार मर गया। फिर पहले साल मलेरिया, फिर अगले साल टाइफाइड, फिर तीसरे, अभी तक क्या तक आ गया है? चिकनगुनिया और डेंगू तक आ गया है। क्या जो 25 साल पहले हम लोग नहीं जानते थे, वो अभी नई नई बातें, नई नाम से शुरू हुआ है। लेकिन बात यही है कि कचरा है तो कीटाणु है, कीटाणु है तो बुखार उसको मारने के लिए है। हर चीज ऑटोमेटिक रखा है, लेकिन हम होने नहीं देते हैं। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट हमारा शरीर में है ब्लड। ये चीज सफा नहीं है, इसके लिए सारा प्रॉब्लम है। आप बताएंगे डायबिटीज कैसे पता चलता है? बराबर। थायराइड कैसे पता चलता है? शुगर से। और दूसरा कोलेस्ट्रॉल कैसे पता चलता है? ब्लड से। तो हर चीज ब्लड से है। तो इस ब्लड को साफ रखना है जो सारा पुर्जा चलाता है। ये जब सफा होगा तब अपने आप हर पुर्जा ठीक हो जाएगा और आप अच्छे हो जाएंगे। तो इसको सफा रखने के लिए कैसे? बस वो जो खाना है, जो शरीर के लिए नहीं खाते, हम जबान के लिए खाते हैं, वो शरीर के लिए खाना शुरू कर देते तो ब्लड अपने आप अच्छा हो जाता है और हर पुर्जा ठीक हो जाता है। जब हम खाते हैं तो शरीर में एक ऐश निकलता है, जिसे हम लकड़ी जलाते हैं तो बुखार जो निकलता है, उसी तरह शरीर में भी खाने के टाइम पे एक ऐश निकलता है। तो वो ऐश जितना अल्कलाइन होते जाएगा उतना हमारा शरीर अच्छा होते जाएगा, हमारा एसिड कम होते जाएगा, शरीर एसिड फेंकना शुरू कर देगा, शरीर एसिड को क्लीन करना शुरू कर देगा। शरीर में एक घड़ी है जो 8 से 4 बजे तक, सुबह शाम को 8 से 4 बजे, 4 बजे से 12 बजे और 12 बजे से 8 बजे तक शरीर काम करता है, ये 3 डिवीजन में। सो रात को 8 बजे से सुबह 4 बजे तक शरीर रिपेयर करता है बॉडी को। चलता हुआ गाड़ी कितना जन यहाँ पर रिपेयर कर सकते हैं? कोई ऐसा है जो चलता हुआ गाड़ी को रिपेयर कर सकते हैं? नहीं। हाँ, तो हम रात को 4-4 बजे तक सोते नहीं है
और कहते हैं शरीर रिपेयर हो, कैसा होगा? तो बहुत इम्पोर्टेंट है। हमको पता नहीं था, ये नेचर को पता नहीं था कि हम टीवी, लैपटॉप ये सब करेंगे बोल के। अगर पता होता तो थोड़ा देर करता था, 12 बजे तक करता था। अभी इसके लिए 8 बजे किया, क्योंकि पुराने ज़माने में सब कुछ 8 बजे बंद हो जाता था, सब लोग 8 बजे सो जाते थे। आज हम लोग रात भर सोते नहीं है और दिन भर सोते हैं, तो इसके लिए रात को जब हम सोते नहीं है तो शरीर रिपेयर होता नहीं है, चलता हुआ गाड़ी रिपेयर नहीं होता है। दूसरा होता है शरीर क्लीन, 12 बजे से 4 बजे से 12 बजे तक शरीर क्लीन करता है। इसके लिए जैसे ही आप सुबह उठते हो आप टॉयलेट के लिए भागते हो, तो शरीर क्लीनिंग करता रहता है। तो रिपेयर करने के टाइम पे आपको सोना चाहिए 4 बजे से 8 बजे से 4 बजे तक। अब एटलीस्ट 10 बजे आप लोग सो जाना चाहिए, तो 6 घंटा एटलीस्ट मिलेगा शरीर को रिपेयर करने के लिए। सोचिए, गाड़ी को अगर 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए आपका जो गाड़ी को आप अगर गैराज में रखा तो कितना साल लग जाएगा रिपेयर होने के लिए। उसी तरह हमारा शरीर को भी वक्त देना चाहिए। तो जैसे ही हम वक्त देंगे तो शरीर अपने आप रिपेयर होता है। आज हड्डी टूटता है तो कौन सा डॉक्टर जोड़ता है उसको? हाँ जी, हाँ जी, ऑर्थोपेडिक जोड़ता है। अच्छा, क्या करता है? क्या करता है बताएंगे? प्लास्टर करता है। और क्या करता है? और क्या करता है? स्कैनिंग करता है, एक्सरे निकालता है। हाँ, एक्सरे, स्कैनिंग और प्लास्टर उसको ठीक करता है, वो बाहर से डालते हैं। अंदर क्या होता है? हाँ जी, रेस्ट। तो प्लास्टर या स्कैनिंग से हड्डी जुड़ती नहीं है, जुड़ती है रेस्ट से। स्किन कट होता है, वो कैसी जुड़ती है? आप प्लास्टर डालते हैं, स्टिच नहीं जुड़ती है। स्टिच खाली उसको साथ रखती है, जुड़ती नहीं है। जुड़ती है एनर्जी। तो हर चीज अगर एनर्जी करती है तो ये क्यों नहीं कर पाती? तो क्लीनिंग जो है 4 बजे सुबह से 12 बजे तक, तो उस वक्त हमें सिर्फ फ्रूट्स खाना चाहिए, जो शरीर के लिए एक डिटर्जेंट जैसा काम करता है। अगर आप दूसरा कुछ खाया तो शरीर रिपेयर अपना क्लीनिंग करना बंद कर देता है। जैसे अगर बच्चे लोग खेल रहे हैं और कचरा हो रहा है तो हम क्या बोलते हैं? ठीक है, इनका खेल खत्म हो जाने दो, बाद में साफ करेंगे। इसी तरह शरीर रोज बोलता है कि इनका काम खत्म होने दो, फिर मैं काम, और उसी तरह कचरा बढ़ते ही जाता है और शरीर को दिक्कत होती है। तीसरा, 12 बजे से 8 बजे तक शरीर एब्जॉर्ब करता है। तो जैसे ही आप 12 बजे आप कुक्ड फूड शुरू करते हो, आपको ये करना है कि रात को 8 बजे से पहले आपका कुक्ड फूड डाइजेस्ट हो जाना चाहिए, या 10 बजे तक एटलीस्ट। जो भी खाना है, आपका शरीर और दिमाग दोनों सोना चाहिए। अभी क्या होता है, रात भर गाड़ी चालू, समझो एक मर्सिडीज गाड़ी लिया और कंपनी ने बोला 10 साल की जिंदगी, दिन भर चलाया, उसको लाके पार्क कर दिया गाड़ी को, और इंजन बंद नहीं किया, हेडलाइट बंद नहीं किया, जाके सो गए। दूसरे दिन सुबह उठे, दूसरे दिन उसी तरह गाड़ी चलाया और उसी तरह पार्क किया। इसी तरह रोज अगर किया तो 10 साल की जिंदगी है। कितनी साल की जिंदगी? तो यही हमारा 150 साल का शरीर 50 साल हो जाता है। हम उसको रिपेयर नहीं होने देते हैं। रात को गाड़ी चालू, पूरा चक्की चालू है, सिर्फ दिमाग सोता है, मतलब गाड़ी पार्क करते हैं। गाड़ी रिपेयर नहीं होता है क्योंकि इंजन चालू है, डाइजेशन, पेट, लंग, सब पार्ट चालू है। इसके लिए गाड़ी रिपेयर नहीं होता है, शरीर रिपेयर नहीं होता है। तो ये सारा प्रॉब्लम, जैसे ही आप लोग देखेंगे कि आप सोने से पहले आपका खाना हजम हो जाता है, आप ऐसा खाना पकाएंगे जो सोने से पहले खत्म हो, तो आपको बहुत इजी है शरीर को रिपेयर करना। सारा जो कैल्शियम टैबलेट है, विटामिन टैबलेट है, वो खाने के रूप में आना चाहिए। खाने के रूप में नहीं आया तो शरीर एब्जॉर्ब करने के काबिल नहीं होता है, और उसकी वजह से बदहजमी, गैस, ये सब बढ़ जाता है। तो खाने के हिसाब से ही आपको सब कुछ मिलना चाहिए, नो सप्लीमेंट्स।
सबसे इम्पॉर्टेंट है ब्रीदिंग। आज 25 साल पहले, 25 या 30 साल पहले मैं नहीं जानता था कोई भी कैंसर पेशेंट मेरे सोसाइटी में, मेरे दोस्तों में, मेरे फैमिली में। आज 25 साल के बाद ऐसा क्या हो गया कि हर चौथा आदमी जो मुझे मिलता है वो कैंसर पेशेंट है। हर चौथा आदमी जो मुझे आ रहा है मेरे पास वो कैंसर पेशेंट है। ये क्या ऐसा चमत्कार हो गया है कि हर चौथा आदमी कैंसर पेशेंट हो गया? क्योंकि घर एयर कंडीशन हो गए, कार एयर कंडीशन हो गए, ऑफिस एयर कंडीशन हो गए, बेडरूम एयर कंडीशन हो गए, तो अच्छी हवा कहां से आएगा? हम सब कुछ एयर कंडीशन कर दिया तो सवा हवा कहां से मिलेगा? नेचर के खिलाफ हो गए हम। तो जैसे ही आप देखेंगे कि आप खुली हवा में ब्रीदिंग, आज जिम और योगा क्लासेस भी एयर कंडीशन। आप जिम क्यों जाते हो? टू ऑक्सीजनेट योर ब्लड। आपका ब्लड में ऑक्सीजन लेवल, आपका सेल्स में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए। तो बंद कमरे में जहां पर 100 आदमी सांसें छोड़ रहे हैं साथ में, दे ब्रीदिंग आउट, वहां पर आपको कहां से फ्रेश एयर मिलेगा? तो पूरा पर्पस जीरो हो जाता है। तो जैसे ही आप लोग ब्रीदिंग करना सीख जाएंगे, आप देखेंगे कि आपका आधा प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, खाने से भी ज्यादा जरूरत है ऑक्सीजन। खाना 40% है, 60% ऑक्सीजन आपको हेल्प करता है। तो आप लोग ब्रीदिंग किस तरह करते हैं? क्या होता है, हमारा जिंदगी में हरी, वरी और करी 3 प्रॉब्लम है। तो जैसे हरी और वरी बढ़ता है, आप देखेंगे आपका ब्रीदिंग बहुत शैलो हो जाता है। तो उसकी वजह से आप डीप ब्रीदिंग नहीं कर पाते हो। सो डीप ब्रीदिंग नहीं कर पाते हो तो ऑक्सीजन लेवल बॉडी का कम हो जाता है। तो जैसे ही आप लोग ये शुरू करेंगे, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, आपका सोच भी अच्छा हो जाएगा, आपका टेंशन लेवल जो है वो कम हो जाएगा, स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। तो ब्रीदिंग करना बहुत जरूरी है। सुबह उठ के और रात को सोने से पहले खूब ब्रीदिंग करने का, स्टमक ब्रीदिंग करने का। बच्चे लोग को ब्रीथ करते हुए देखा है, पेट ऊपर नीचे, क्योंकि बच्चे लोग को स्ट्रेस नहीं होता है, तो डीप ब्रीदिंग करते हैं। जैसे ही हम थोड़े उम्र में आ जाते हैं तो हमारा ब्रीदिंग लेवल बहुत शैलो हो जाता है। तो डीप ब्रीदिंग करना बहुत जरूरी है। धूप में तो कोई निकलता ही नहीं आजकल, थोड़ा सा धूप आ गया तो छाता। हाँ, तो धूप बहुत जरूरी है। आपका विटामिन डी, कैल्शियम, ये सारा B12, ये सारा धूप में लेवल हो जाता है। 1 घंटा मिनिमम आप लोग धूप में रहना बहुत जरूरी है। कितने जन आज से धूप लेंगे? सब? वेरी गुड। मैं आप लोग को लेमन्स लिखूंगा पीने के लिए। तो लोग बोलते हैं हड्डियां नरम हो जाती है, दांत गल जाते हैं एंड ऑल। सो प्लीज ये सब बातें एक मिथ है, कुछ नहीं होता है। तो लेमन्स लेना बहुत ज़रूरी है। एसिडिटी के लिए लोग बोलते हैं लेमन्स को छूना नहीं चाहिए, लेकिन मैं लेमन्स एसिडिटी के लिए सबसे ज़्यादा देता हूँ। सो आप लोग लेमन्स लेने में डरिए मत। नींबू, हाँ जी, हाँ, लेने के बाद कैसे प्रॉब्लम होता है? जलन होता है, लेकिन खाली नींबू लेने से? आप चाय पीते हो? हाँ, और वो याद नहीं आपको? हाँ, सुबह उठ के आप तेल वाला खाना खाते हो, वो याद नहीं आपको? चाय का हैबिट है, नाश्ता नहीं है? हाँ, बराबर हो। वो सब नहीं खाने का। जैसे ही ये खाना बंद हो जाएगा आपका, ऑटोमेटिकली आपका एसिड लेवल कम हो जाएगा और ये आपके लिए दवाई के हिसाब से काम करेगा। खाली ये नहीं, पूरा आपके खाने के हिसाब मैं आपको बता दूंगा क्या क्या लेना है बोल के। लेकिन इस चीज से बहुत सारे लोग डरते हैं। आर्थराइटिस वाले, एसिडिटी वाले नींबू से बहुत डरते हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट चीज है इस दुनिया में, नींबू और अदरक। ये 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, शक्कर फिर थोड़ा सा पानी डाल के मस्त नींबू शरबत बना के पीजिए। तो जब जबान खुश हो जाता है तब शरीर रोने लगता है। तो अब जबान को थोड़ा सा ना खुश कर देंगे और शरीर को हंसाएंगे। हाँ, थोड़ा सा
हम खाने पीने में ध्यान रखेंगे तो जबान थोड़ा सा ना कुछ, कभी किसी ने देखा है जबान बीमार गिरते हुए? हम बोलते हैं आंखें बीमार है, कान बीमार है, हाथ बीमार है, पैर बीमार है, जबान किसी का बीमार गिरा है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसे हम हमेशा खुश रखते हैं। हाँ, जैसे हम इसको थोड़ा सा कमी देंगे तो ये अपने आप शरीर ठीक हो जाएगा, तो शरीर हंसने लगेगा, शरीर खुश रहेगा। तो आप आज से जबान को खुश रखना, इसके अंदर क्या जाता है और इससे बाहर क्या निकलता है, अगर दो चीज का अगर हमने ध्यान रखा तो हमको बहुत सारी काम आसान हो जाता है। हमारा शरीर भी ठीक होता है और हमारा रिश्ता भी लोगों से ठीक रहता है। हाँ? हमारा शरीर जो है वो कंप्लीट ऑटोमेटिक मोड है। शरीर को पूरी तरह से एकदम ऑटोमेटिक रखा गया है। आपको सांसें लेने के लिए बोलना पड़ता है? कितने जने यहाँ पर जो बोलते हैं शरीर सांस लो? नहीं। बराबर। डाइजेशन के लिए बोलना पड़ता है? नहीं। बॉडी क्लीनिंग के लिए बोलना पड़ता है? नहीं। खाना हजम होने के लिए भी नहीं बोलना पड़ता है। नखून बाल उगाने के लिए नहीं बोलना पड़ता है। तो फिर हीलिंग क्वेश्चन क्यों है? सब कुछ अगर ऑटोमेटिक है, आंखों में एक कचरा आ जाता है, उसी पल पानी भर के आता है और वो कचरे को साफ कर देता है। तो अगर यहां तक अगर परफेक्शन है तो हीलिंग क्यों नहीं होता है? हीलिंग के लिए क्यों क्वेश्चन? क्योंकि हीलिंग आप लोग चांस देते नहीं है। हीलिंग को आप चांस दोगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। सब कुछ ऑटोमेटिक है। बच्चा पैदा होता है ऑटोमेटिक। कुछ मेहनत, क्या हाथ पैर बनाने के लिए कोई मेहनत करता है? तो अगर इतनी बड़ी बात हो जाती है अपने आप, तो हीलिंग क्यों इतनी छोटी सी बात नहीं होती? क्योंकि आप उसको चांस नहीं देते हो, आप अपने शरीर पर विश्वास नहीं करते हो। इसके लिए आज इतना सारा डर है, छोटी छोटी बातों के लिए डर बैठ गया है। तो बस अपना शरीर पे और उस बनाने वाले पर कंप्लीट ट्रस्ट करो, उसके पर फेथ रखो और अपने आप शरीर ठीक हो जाएगा। जंगल में कितने जन ने दवाई का दुकान देखा है? 84 लाख योनियां हैं जो बिना दवाई का जिंदगी चला रहे हैं। कोई भी दवाई नहीं, सब कुछ अपने हिसाब से नेचर कर रहा है। हमको क्यों फिर आज दवाई की इतनी जरूरत पड़ गई है? हर चौथी बिल्डिंग के बाद एक 24 आवर्स मेडिकल शॉप खुल गया है। कुछ जमाने पहले एक डॉक्टर बड़ी मुश्किल से एक एरिया में हुआ करता था, जो थोड़ा सा डिकोशन मिला के 5 साल में 6 साल में, मुझे याद है हम लोग कभी जाते थे तो 2-3 कलर का डिकोशन मिला के थोड़ा सा दवाई दे के 5 दिन में ठीक हो जाता था। और कभी ब्लड टेस्ट के लिए नहीं जाते थे, कभी आज हर छोटी चीज के लिए ब्लड टेस्ट, हर छोटी चीज के लिए एक्सरे, स्कैनिंग। क्यों? तो अगर पूरी 84 लाख योनि अगर चल सकती है बिना दवा और बिना डॉक्टर से, तो हमको क्यों? तो आज हमको ये सोचना बहुत जरूरी है। डॉक्टर्स की जरूरत है इमरजेंसी, लेकिन ऑन द लॉन्ग रन शरीर अपने आप हील होना चाहिए। और अपने आप कब हील होगा? जब आप शरीर की सारी जरूरतें पूरा करेंगे। किस तरह चलता है, क्या खाना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, ये पूरी बातें हमको याद रखना पड़ेगा। जैसे शरीर पूरा कंप्लीट ऑटोमेटिक है, उसी तरह हमारा जिंदगी भी कंप्लीट ऑटोमेटिक है। कोई बताएगा ये कैसा है? सर आप बताएंगे? हाँ, हमारा शरीर जिस तरह कंप्लीट ऑटोमेटिक है, उसी तरह हमारा जिंदगी भी कंप्लीट ऑटोमेटिक है। आप लोग ने सुबह खाना खाया? कितने जन ने यहाँ सुबह खाना खाया? ऑल ऑफ यू? ओके। वो खाना आपने उगाया? नहीं। ये कपड़ा जो आपने पहना है वो कितने जन ने खुद बनाया? नहीं। कितने जन यहाँ पर है जो गाड़ी में बैठ के आए? बराबर, सब बैठ के आए। वो गाड़ी किसने बनाया? आपने में से किसी ने बनाया? नहीं। तो हर चीज
90% यहाँ पर जो है वो आपको साथ देता है, तब जाके आपकी 10% जिंदगी में आप खुद कुछ कर पाते हो, राइट। सो इसका मतलब क्या हो गया कि सारी चीजें है तो हम है। तो सबसे पहले इसका ये कारण है कि मैं का जो अहंकार है वो आज से निकाल डालो, क्योंकि वो अहंकार ही हमें गुस्सा, हमें घृणा दिलाता है और उसकी वजह से हम शांत नहीं रह पाते। तो ये हमारी मन और बुद्धि को काबू में लाने के लिए बहुत जरूरी है कि मैं कुछ नहीं है। अगर 90% जिंदगी इतनी शांति से आपका सपोर्ट करता है तो आप 10% के लिए क्यों इतनी आवाज करते हो? आप 10% के लिए आवाज नहीं करना चाहिए, और इतनी आवाज करते हो कि पूरा शरीर बीमार पड़ जाता है। तो आज से कितने जन यहां पर है जो वो 10% के लिए आवाज करेंगे? नन ऑफ यू ऑल। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये सोचना कि पूरी दुनिया मेरे को सपोर्ट। आप बोलेंगे कि पैसा दे रहे हैं हम हर बात के लिए, तो अगर वो लोग बोलेंगे कि आपको ये साल मुझे पैसा नहीं देना है, ये साल मैं आपके लिए वो सब करेंगे, लेकिन अगले साल आप हमारे लिए वो सब करना जो मैं ये साल कर रहा हूं, कोई कर पाएगा? नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि आप वो काम जो कर रहे हैं वो काम उनकी वजह से कर रहे हैं, आपका पैसे का मोल नहीं है। तो आपको जब तक ये पूरा सपोर्ट नहीं मिलता है तब तक आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते हो। सो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग ये सोचना कि मैं कुछ नहीं हूं। मैं अगर कुछ हूं तो इन सारी बातों के साथ मैं हूं, तो सबसे पहले अहंकार और गुस्सा निकल जाएगा। क्योंकि हमारा सोचना जब अच्छा नहीं रहता है तो शरीर को बहुत तकलीफ होती है। मन को भी खाना चाहिए, मन का खाना है शुद्ध सोच। तो अभी हम जो कंप्यूटर की तरह चलते हैं, जो प्रोग्राम हमने किया है ऑलरेडी बचपन से लेके, माँ बाप ने जो किया, स्कूल ने जो किया, ट्यूशन्स जो किया, दोस्तों के बीच में जो हुआ है, वो प्रोग्राम के हिसाब से हम चलते हैं। तो वो प्रोग्राम को रीप्रोग्राम करने के लिए हमको सिर्फ कुछ पल की जरूरत है, लेकिन वो पल हमको याद रखना पड़ता है, हमको वो क्रिएट करना पड़ता है वो सोच को। अभी हम ऑटोमेटिक चलते हैं, तो ये रीप्रोग्रामिंग होना बहुत जरूरी है। तो आज से कितने जन यहां पर गुस्सा होने वाले हैं? एक भी नहीं? पक्की बात है, वायदा है, सबको फाइन लगेगा। हाँ, कोई भी गुस्सा नहीं होगा। अरे वाह, वेरी गुड। ब्लेसिंग्स, कितने जन यहां पर है जो ब्लेस्ड है? ऑल ऑफ यू। कितने पल के लिए याद करते हैं आप लोग उस बात को? कितने पल के लिए याद करते हैं? हमेशा, एवरीबडी। सो यू डोंट गेट एंग्री, यू डोंट गेट स्ट्रेस्ड, राइट। हम ब्लेसिंग्स बहुत कम याद करते हैं, हमको ब्लेसिंग याद ही नहीं रहता है। जरा सा कुछ खराब हो गया तो बस नाराज। 99% अच्छा है, 1% खराब है, हम स्ट्रेस्ड। आज स्ट्रेस किसकी वजह से? स्ट्रेस इसी की वजह से कि कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ देने का नाम लेने का नाम स्ट्रेस है, देने का नाम स्ट्रेस नहीं है। तो कुछ लेना किसी से या कहीं से या पाना, यही स्ट्रेस है। सारे लोग स्ट्रेस बोलते हैं, स्ट्रेस इसलिए क्योंकि ब्लेसिंग्स याद नहीं है। ये पूरा शरीर मिलना कितना बड़ा ब्लेसिंग है, ये हमको याद नहीं है। हमारा 2 वक्त का रोटी हमको मिल रहा है, ये हमको याद नहीं है। अच्छे माँ बाप, अच्छे भाई बहन, अच्छे दोस्त, सब कुछ, अच्छा स्कूल, ये हमको मिल रहा है, ये किसी और ने किया है, लेकिन हमको मिल रहा है स्कूल, हमको मिल रहा है पढ़ाई, ये हम याद नहीं रखते। इसकी वजह से स्ट्रेस है। स्ट्रेस सिर्फ लेने का, देने के नाम पे स्ट्रेस नहीं होता है। कुछ कमियां हैं, कुछ कमी मिल रही है। आज राधा कृष्णा में इडली एक कम कर दो तो स्ट्रेस, एक मिला बोल के खुश नहीं रहेंगे। इसी तरह हर चीज जो है वो हमको कम मिल रहा है, इसका नाम है स्ट्रेस। लेकिन जैसे ही आप लोग को दूसरी सारी बातें याद रखेंगे, चलो ये थोड़ा सा कम है,
बाकी सब चीज़ें हैं, तो आपको अपने आप स्ट्रेस कम हो जाएगा। आज बहुत इजीली लोग बोलते हैं आई एम स्ट्रेस्ड अबाउट व्हाट, आई एम स्ट्रेस्ड अबाउट नॉट गेटिंग समथिंग, अ फ्यू थिंग। एक मेरे पास एक लड़की आई, बोली मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, 7 साल से स्ट्रेस की गोली, डिप्रेशन की गोली खा रही हूँ और नींद की गोली खाती हूँ, नींद नहीं आता है। तो उसको पूछा कि किस बात के लिए आप स्ट्रेस्ड हो, तो कुछ बताने लगी। मैं बोला लिख लो, तो लिखने लगा। 8 पॉइंट लिखा उसने। कितना? 8। थोड़ा सा मेजर था लेकिन 8 पॉइंट लिखा। उसके बाद उसको पूछा मैंने कि आपके पास ब्लेसिंग्स क्या है, आपके पास क्या अच्छी बात है? बोला कुछ नहीं। तो बोला वाह। फिर एक वीडियो दिखाया जहां पर एक लड़की गले से नीचे कंप्लीटली पैरालाइज्ड है, जिसको मैं ट्रीट कर रहा हूँ। एक्सीडेंट की वजह से पूरा पैरालाइज हो गया। तो मैं बोला ये देखो, ये लड़की परसों क्यों रो रही थी पता है? इसके घर पे गया तो ये रात भर प्यासी थी और पानी के लिए कोई नहीं था। आप अपने हाथ से अपना काम कर सकती है, अपने पैर से अपना काम उठ के कहीं भी जा सकती है, अपने आंखों से देख सकती है, अपने कान से सुन सकती है, अपने दिमाग से सोच सकती है। ये ब्लेसिंग्स नहीं है? तो सोचने लगी। तो उसके बाद मैं बोला यहाँ से शुरू करो और अपनी ज़िंदगी में क्या क्या है ये दूसरे कमरे में जाके लिखो। पता है के बाद उसको बुलाया तो कितनी ब्लेसिंग्स लिख के आई, कोई बता सकता है? 780 ब्लेसिंग्स पॉइंट्स लिख के लेके आई, 718 1 आवर। फिर उसने पूछा अभी मेरा डाइट क्या? मैं बोला डाइट कुछ नहीं, कल से सुबह ब्रेकफास्ट से पहले, दोपहर का खाने से पहले, शाम का चाय से पहले, रात का खाने से पहले 4 दफे ये ब्लेसिंग्स पढ़ लेना। और 8 दिन के बाद उसने मुझे फोन किया कि आज मैं चैन से सोई। क्यों? क्योंकि हम कभी इस मन और बुद्धि को ट्रेन नहीं करते हैं। कुछ पल हम अपने शरीर के लिए देते नहीं है, हमारा मन के लिए देते नहीं है, हमारा बुद्धि के लिए देते नहीं है। हमको लगता है हम जो सोचते हैं, जो करते हैं वो परफेक्ट है। हम कभी भी इसको देखते नहीं है कि ये गलत है या सही है। कोई भी यहाँ पर है जो अकेला बैठ के 1 घंटा अपनी पूरा दिन किस तरह बिताया सोचता है? कोई नहीं। मतलब सब परफेक्ट एकदम। हाँ, तो बस यही कारण है हम स्ट्रेस हो जाते हैं। जैसे ही हमारी सोच बदल जाएगी हमारा स्ट्रेस कम हो जाएगा, और जैसे ही स्ट्रेस कम हो जाएगा हम एकदम आसानी से ये दुनिया में जी सकते हैं। तो आज से कितने जने यहाँ पर जो स्ट्रेस हो जाएंगे? एनीबॉडी स्ट्रेस रहेंगे? कोई भी यहाँ पर? कोई नहीं? वेरी नाइस। तो 2 चीज आज से नहीं, मैं बीमार हूं नहीं, ओके, और स्ट्रेस नहीं, बराबर। कितने जने जो लाफिंग क्लब जाते हैं हंसने के लिए? कोई नहीं? मतलब कोई नहीं हंसता है? हाँ, सोचिए, हंसने के लिए भी लाफिंग क्लब जाना पड़ता है। हाँ, अपने घर में अपने परिवार के साथ बैठ के रोज 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम को प्लीज हंसिए। कितना भी प्रॉब्लम हो जाएगा, आप लोग एक दूसरे का साथ देकर उनके साथ बैठकर 5 मिनट खूब हंसना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम एक ऐसे भगवान का देन है जो सिर्फ हम हंस सकते हैं, इंसान, और कोई 84 लाख योनियां नहीं हंस सकती है। एनीबडी नोज एनी अदर बीइंग लाफिंग? नो। सो सी हाउ ग्रेटफुल वी शुड बी। हाँ, क्योंकि हंसना स्ट्रेस को कम करना है। लेकिन लोग वेट करते हैं कि मुझे कौन हंसाएगा, कपिल हंसाएगा टीवी में, हाँ, या और कौन सा प्रोग्राम है, सीरियल, हाँ, जॉनी लीवर हंसाएगा? नहीं, हम किसको कैसे हंसाएंगे? हमको वेट नहीं करना है कि कौन हमको हंसाएगा, हमको वेट करना है कि मैं कैसे हंसाऊं। तो ये देन आप लोग को देना है। ओके, हम वेट करते हैं कौन हमको खुश करेगा, कौन हमको हंसाएगा, कौन हमको प्यार करेगा। नहीं, ये सारा हमारे अंदर का
पावर है, खुशी हमारा पावर है। इसको पहन के चलो 24 घंटा। खुशी जैसा कोई खुराक नहीं है। थोड़ा सा खाना खाओ लेकिन खुश होके खाओ तो शरीर पकड़ेगा उसको, शरीर में ऊर्जा बनेगा। सो डिप्रेस्ड हो, अगर मूड ठीक नहीं है, गुस्सा हो, खाने को हाथ नहीं लगाने का। अगर तवा गर्म रहता है तो खाना उसमें जल जाता है, उसमें पकता नहीं है। पकने के लिए सही टेम्परेचर चाहिए। तो जैसे ही आपका सोचना गलत है, आपका सोचने में गुस्सा है, घृणा है, आप उस दिन खाना मत खाना, क्योंकि खाना ऊर्जा नहीं बनेगा। तो खाना खाने से पहले आपको कुछ पल के लिए प्रार्थना करनी होगी उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने आपके लिए वो खाना उगाया, पकाया, हर चीज के लिए, जिन्होंने काट के वो धूप में खड़ा रह के आपके लिए मेहनत की है। आप कुछ पैसा देंगे तो उसका मोल नहीं चुका सकते, लेकिन अगर हम उन सारी आत्माओं के लिए प्रार्थना करेंगे तो उसका मोल चुक जाएगा और वो खाने में एक ऊर्जा आ जाएगा और हमारे अंदर वो ऊर्जा बढ़ जाएगा। तो आप प्लीज 5 मिनट के लिए, कितने जने यहां पर जो खाना खाने के टाइम टीवी देखते हैं? एवरीबॉडी, राइट। तो आज से टीवी बंद और 5 मिनट के लिए उन सारी आत्माओं के लिए जिन्होंने आपको ये जिंदगी चलाने में मदद की है, उन सारे आत्माओं को याद कर कर एक शुभ भावना भेजने का, एक वाइब्रेशन। तो आपके अंदर पहले वो शुभ भावना भर के, तब आज ग्लास खाली है तो हम आपको जूस दे सकते हैं उसके अंदर? नहीं। अगर ग्लास भरा हुआ है जूस से, तब जाके हम आपको दे सकते हैं। तो उसी तरह अगर शुभ भावना आप दे रहे हो तो पहले अपने आप में भर लेते हो। तो खाना खाने के टाइम पे आज के बाद कितने जन टीवी देखेंगे? पक्की बात, सोच लो। वायदा, पूरा वायदा, कोई नहीं टीवी देखेगा। अरे वाह। और कितने जने जो प्रार्थना करेंगे 5 मिनट के लिए? वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये हंसना सबके साथ 5 मिनट के लिए, कुछ भी प्रॉब्लम हो 5 मिनट बैठ के सब लोग हंस लेना और तरीका ढूंढना हंसाने के लिए। दूसरे लोग से वेट मत करना। ओके, सो हियर आई कंक्लूड। नाउ क्वेश्चंस फ्रॉम यू ऑल। Yes, yes. She had told me for that. Yes. સમજો? Very good. Thank you. અમે લોકો વલાની પર બહાર સૂઈએ Sarkam. જમ્યા પછી No, you have to write it in the form. You have written it. That's enough. No, medicine we will wean it out slowly. Next. God bless him, Harish Bhai. Very good session. Hello, my name is Sonali Saman. I got to know about Mr. Shetty from one of my friends, and after taking medicines, following different diets, when I still feel that by the, even I'm not fresh when I get up. That feeling really troubles me, and because of that, when I heard from my friend that actually what you eat can cure you, so I thought this is the best part of it, and I came here, and I think that this is one of the best evenings of my life, because I think going ahead from here my life would really change. It would change for myself, my family, and I'm really I will try not to get angry. I will try to count on my blessings. I will try to not wait for someone to make me laugh, and I'll try to eat according to the plan which will be given to me. What I liked was little bit of cheating is allowed, because I need that little bit. So I think this is a very doable thing, and I really enjoyed the dinner spread there. And I think if we are allowed to eat this, then why not? I mean, this is the best part of it. Eat what you like and live how you like. Thank you. मेरा नाम कामिनी अरोड़ा है और मुझे ना सिम्बोसिस हुई अभी, तो मैं डॉक्टर साहब का नाम सुन के आई थी।
यहाँ पर, लेकिन उनकी बातें मुझे इतनी अच्छी लगी कि वाकई में अगर हम सब इस चीज़ को फॉलो करें तो बीमारी कहीं नहीं है, ना शरीर कभी बीमार हो। थैंक्स। I am Sunil Mantri, principal of a college, was a principal of a college. I am diabetic from last about 20 years. A year back I met Mr. Harish Shetty. He happens to be a student of my college. So during that alumni meet I met him. He came to know about my diabetic status, so he later on advised me to start with his diet. Initially was a bit skeptical, so for about 10 months I did not follow it up. But then in the last 2 months since I've been following the diet, my medicines have reduced by half. My weight has come down by almost 4 kgs. Sugar is under control. I have 3 sitapals a day, 3 bananas a day. I have all possible things which probably my earlier doctor told me not to have. But with this diet, I think everything is under control. Hats off to Mr. Harish Shetty. Thank you. और आपका? मेरा नाम दीपक दानी। कैसे चल रही है कैमरा? मेरा 60 साल की लाइफ में कभी ऐसा देखा नहीं है हमने। मेरे घर में 2-3 पेशेंट है, सबको अच्छा करना है। इसमें फर्स्ट ये है, दूसरा मेरा एक भाई का लड़का है, उसको भी अच्छा करने बात किया मैंने डॉक्टर साहब से, वो बोला इसको भेज दो इधर ही। मेरा नाम महेंद्र देसाई है और मैं घाटकोपर से आया हूँ। मेरे को बहुत साल से ये ओबेसिटी और वेरिकोज वेन का प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं आया हूँ। अभी ये एक्सपीरियंस लेके घर में ट्राई करेंगे, बाद में इनकी जो रेसिपीज़ है वो ट्राई करने के बाद में कैसा महसूस होगा वो बाद में मालूम पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर। मेरा नाम है काश्मीरा, मैं चुनाभट्टी से आई हूँ और मुझे ये सेशन से काफ़ी कुछ जानने को मिला है। मेन तो पहले पॉजिटिव अपने लिए जियो, पहले अपना सुधार करो, बाद में दूसरे का सुधार करो, वो सही है। क्योंकि हम खुद बीमार होंगे तो हम दूसरे को कैसे सेवा कर सकेंगे, इसके लिए मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आई एम रिद्धि मेहता। रेखा मेहता। Today's session was extremely eye-opening for me. I just come here to come here with my mother because she's diabetic, and just wanted to know a few things to change in her diet. But even though, like for me also, I've come to know like a lot of things that can be improved for my own health, and we'll try and see to follow Sir's diet for my mother and come back next time sooner. बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, मुझे करेंगे हम लोग अभी आगे। And yeah, the food is unbelievably tasty, and I could not believe that it's without oil, so खाना बहुत ऐसा बना सकते हैं oil के बिना। Yeah. So now we are very enthused to try out these dishes and see how it works. Thank you. I'm Dinas. And after going through the session, I've realized what wrong food till now I was eating. Though I used to think I'm having a proper diet, but now I've realized I was not taking a proper diet, and now I'll rechange my diet and go through a proper diet. Thank you. I'm Anita Patel. I came here with a very open mind, expecting nothing, but I'm really happy and thankful to my friend who's got me here. So that it was a big eye opener कि हम जो सोचते हैं कि हम सही खा रहे हैं, बट एक्चुअली में हम बहुत गलत खा रहे हैं। एंड आई एम श्योर दिस सेशन विल हेल्प अस फॉर अ बेटर लाइफ एंड अ हेल्दी लाइफ। आई एम गीता एंड वन ऑफ माई फ्रेंड हैड रिकमेंडेड। आने से पहले आई हैड द नोशन कि ये नेचुरोपैथ है तो सिर्फ फ्रूट्स वेजिटेबल्स ऐसा सब खाने को बोलेंगे, बट आफ्टर द सेशन, आफ्टर द लेक्चर एंड द फूड व्हाट वी हैड, I can see that even after following all the norms whatever are given, we can have all the taste in the food. Thank you. मेरा नाम किशोर बंसाली, पार्ला वेस्ट में रहता हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम मेरी इंडिया में, मैं घूमता हूँ मैं बहुत जगह पे, लेकिन ऐसी सेवा करते हुए किसी हरीश शेट्टी से आदमी को मैंने नहीं देखा हुआ है। आदमी को बुलाना, इतना समझाना, इतना टाइम देना, ये समय में बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया गुजार हूँ हरीश शेट्टी साहब का। धन्यवाद सर।